Yeah. So recording is done. So binary search के अंदर में we have binary tree के अंदर में we have done the introductory part and the intermediate part as well. We'll see another problem solving idea today on binary tree, and apart from this we have BST. Okay, next forward, let's say on Sunday, maybe it might be done. So I'll give you a brief idea about BST today itself, and tomorrow, if it's my class or if it's Rahman class, he will give you a brief introduction about how to do things and all. See, So today it will be done, right? today, BST, No, 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 not BST, normal. हाँ हाँ नॉर्मल तो बाइनरी ट्री तो हो जाएगा आपका आज खत्म. सो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ स्ट्रेचिंग इट बियॉन्ड टुडे, राइट. सो आज तो आपकी बाइनरी ट्री खत्म हो जाएगी. टुडे बाइनरी ट्री विल बी डन. एंड देन Hmm. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ बाइनरी सर्च ट्री. इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि इट इज लाइक implemented on binary tree, some sort of optimization on binary tree. So yeah, maybe on Sunday I am hoping like ये खत्म हो जाए चीजें. Yeah. Apart Okay. from that, we have few questions today that we have to do. One of those questions that we have today is invert binary tree. So in last class, if you remember, मैंने कुछ questions कराए थे जो fundamental questions होते हैं, height of the binary tree, diameter of binary tree, is similar, is symmetry, mirror image, ये सारी चीजें हमने करी थी, right? तो वो सारे Correct. questions we have already done those questions. In today, specifically in today class, what we are going to do, we'll be doing some questions on invert binary tree and views, left views, right views, है ना, इन सब चीजों की top views. So Hmm. this will be the end of the binary tree. Specifically, binary tree का खत्म हो जाएगा. And then going forward, what you can we can start with the BST and that's stuff. So in last class of binary tree, I would take this question today. Invert binary tree. So the question is, you will be given a root of the binary tree, invert the tree and return its root. मतलब आपको एक रूट गिवन होगा, you have to invert the trees. Okay, I'll go in details what exactly is these things. So let's say if the tree that is given to you is nothing but a tree, something looks like this: 4, 2, 1, 3, and you have 7, and then you will have 6, and then you will have 9. Right? And the expected tree after inverting it, the expected tree that you want is something like this. So 4, 7, 2, 9, 6, 3 and 1. Right? So this is what we know. So अगर आप चीजों को देखो, ये ट्रू, 4 के लेफ्ट में ये ट्रू था. नाउ इट इज इन द राइट साइड, राइट. इज दिस द इंट्यूशन दैट यू आर गेटिंग? ये इसके राइट में था, अब ये इसके लेफ्ट में है. आपको ये चीजें दिख रही है क्या? अगर Correct. इसको एज अ रूट माने, सब रूट माने, एक रूट टू माने, इस रूट के बाद अगर ये इस रूट पे आता है, तो अगर देखो ये 1 इसके लेफ्ट में था तो 1 इसके राइट में होगा, क्योंकि ये 3 ही उठ के उसके राइट में चला गया तो 1 इसके राइट में हो गया. और 3 इसके लेफ्ट में था तो 3 इसके राइट में यहाँ पे. सो अगर आप चीजों को देखो, अगर काफी इंटेंशन की तरीके से देखो, ऐसी चीजें देखो, तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. वी जस्ट हैव टू ब्रेक दीज चेन्स दैट इज देयर. है ना, ये लिंक्स जो आपको दिख रही है, ये लिंक्स. वी Hmm. हैव टू ब्रेक दीज लिंक्स. फोर की लिंक, फोर की जो लेफ्ट वाली लिंक थी, लेफ्ट वाली लिंक, वो पहले Hmm. 2 से कनेक्टेड थी. 4 की लेफ्ट वाली लिंक को 7 से कनेक्ट कर दो. एंड देन 4 की लाइट लेफ्ट राइट वाली लिंक जो 7 से कनेक्टेड थी, 4 की राइट वाली लिंक 2 से कनेक्ट कर दो. तो क्या ये आपको मिलेगा? ये बाइनरी ट्री आपको मिल जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? लेट्स टॉक अबाउट दिस टू. तो अगर मैं, लेट्स डू इट ऑन एक्सटेंड, वट एवर, ये तो बाइनरी ट्री है. 4, 2, 7. Okay, let me see if I'm my system is lagging. I don't know. This is fine. This is fine. Let's close this as well. Let's do some of the applications here. I guess मेरा system lag कर रहा है because I'm recording it in full HD. Right. So I think ये क्वेश्चन तो हमने कर दिया था. सेम ट्रीट हमने कर दिया था लास्ट क्लास. लेट्स होप कि अब ये थोड़ा
लैग ना करे। यस इट इज वर्किंग फाइन। यस सो 4297 वी हैव। यहाँ पे हमारे पास कुछ और अगर सबस्ट्रिंग्स है, लेट्स से 14, 13 एंड 11 और समथिंग लाइक दिस, राइट। मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस होल बिग सब ट्री। एक छोटी सब ट्री को हम लोग लेते हैं, इस वाली सब ट्री को लेते हैं, ठीक है। इस वाली सब ट्री को अगर आपको मेरी डॉटेड लाइन दिख रही है तो ठीक है। सो इस सब ट्री में मेरे पास क्या है, मेरे पास एक 2 है, 2 के लेफ्ट में आई हैव 9 एंड 2 के राइट में आई हैव 7। डू यू अग्री ऑन दिस? मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी ये रोटेटेड या इन्वर्टेड नहीं है, राइट? Hmm. This is not rotated. This is neither. Okay, he's sending a Zoom link. So let me just. Okay. So this is neither rotated, neither. This is not inverted, right? It is not inverted yet. अगर मुझे इन्वर्ट करना है, अगर मुझे इन्वर्ट करना है, अच्छा ये बताओ आप, 2 के 2 के लेफ्ट में आई हैव 9, 2 के लेफ्ट में आई हैव 9 एंड 2 के Correct. राइट में आई हैव 7, राइट। अगर मुझे करेक्शन ब्रेक करना है, अगर मुझे इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट से मैं मतलब क्या बोलता हूँ, भाई इस 7 को इधर ले आओ, इस 9 को इधर ले आओ। सो अगर आप देखो 2 के लेफ्ट में 9 था, तो मैंने क्या बोला, भाई 2 के लेफ्ट वाले को किधर पॉइंट करा दो, इंस्टेड ऑफ इस 9 के इस 7 पे पॉइंट करा दो, और 2 के राइट वाले को इस 7 की बजाय इस 9 पे पॉइंट करा दो। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग। अगर 2 का राइट 9 को पॉइंट करने लगे, तो क्या ये 2 का राइट 9 को पॉइंट कर रहा है? मतलब मैं बता दूं कि चीजें चल कैसे रही है, जब कोड लिखेंगे तो काफी क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड 2 का लेफ्ट 7 को पॉइंट कर रहा है। सो यहाँ पे चीजें हम कर क्या रहे हैं ना, हम लोग चीजें कर रहे हैं, लिंक्स को लिंक्स को Update ब्रेक कर कर रहा रहे हूँ. हैं एंड नई लिंक्स बना रहे हैं, न्यू लिंक्स। हाँ अगर आप कहना चाहो, सो वी आर सिंपली अपडेटिंग लिंक्स। हम लोग सिंपल कर रहे हैं लिंक्स को अपडेट कर रहे हैं लिंक्स को। सिंपल सी बात है भाई, 2 के लेफ्ट में इधर गया, राइट में इधर गया, सिंपल। अच्छा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में ना, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में ये चीजें फायदा होती है। अच्छा ये क्यों चलती है, अगर आप पूछो ये क्यों चलती है, सो जो हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसकी डिक्लेरेशन होती है एक मेमोरी के अंदर में, जिसको बोलते हैं हीप मेमोरी, ठीक है। वो एक बड़ी सी मेमोरी होती है ऐसी, और इसके अंदर में आप एक कंटिन्यूअस मेमोरी लेते हो। आप कंटिन्यूअस मेमोरी मतलब एक एरे लिया आपने, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो। सो आप ये जीरो लेते हो, जीरो के बाद इसकी इंडेक्स 1 आती है, इसकी 2 आती है, इसकी 3 आती है, इसकी 4 आती है, इसकी 5 आती है। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर में ब्रेक करना, ये करना, वो करना, काफी चीजें होती है कि भाई जीरो इंडेक्स से उठाया, इसको 4 पे पटक दिया, 4 वाले को उठाया, 2 पे डाल दिया, 1 वाले को उठाया, 5 पे डाल दिया। सिंपल सॉर्टेड एक बकेट कंटेनर की तरफ होती है। बट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर में चीजें ऐसे होती नहीं। तो मान लो आपका 2 यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, 2 का लेफ्ट कहीं यहाँ पे 9 में, सॉरी 2 का लेफ्ट 7 है ना। सो लेट्स से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2 का 7 कुछ ऐसे यहाँ पे कहीं पे डिक्लेयर होगा, और 2 का राइट कहीं पे यहाँ 9 पे डिक्लेयर होगा। अब ये होता क्या है, 2 का लेफ्ट इज पॉइंटिंग टू 7, 2 का राइट इज पॉइंटिंग टू 9, राइट, राइट। अब आपको इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट करना है, राइट, इन्वर्ट करना है। आप क्या बोलोगे, भाई इस लिंक को ब्रेक करो, इस लिंक को ब्रेक करो, इस लिंक को ब्रेक करो। लेफ्ट जो पहले 7 को पॉइंट कर रहा था, अब लेफ्ट को इधर पॉइंट करा दो। राइट जो पहले 9 को पॉइंट कर, नहीं, लेफ्ट लेफ्ट 7 को पॉइंट कर रहा था ना, तो लेफ्ट अब 9 को पॉइंट करेगा, परफेक्ट। राइट जो पहले 9 को पॉइंट कर रहा था, अब राइट को किसको पॉइंट करा दो, इस 7। तो आप ये चेक करो, पहले जो आपकी एरे कुछ मतलब ये बाइनरी ट्री कुछ ऐसी दिखती थी, क्या इस लिंक्स को अपडेट करने के बाद वो कुछ ऐसी दिखेगी, 9 एंड Hmm. 7, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी डू, वी आर ओनली कंसर्न, मैं मतलब थोड़ा डिटेल में जाके बता दूं, चीजें आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी हो क्या रही है। ओनली वी आर कंसर्न विद दिस पॉइंटर्स, ठीक है, ये इस पॉइंटर्स के ऊपर हम लोग कंसर्न है, और इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अच्छा ये सारी चीजें ना डिफाइंड होती है, क्लास के अंदर चीजें डिफाइंड होती है, ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता नहीं है आपको, ठीक है। तो आप एक क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर आप 2 पॉइंटर्स देते हो। अच्छा यहाँ पे तो इन्होंने दे के रखा है ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक 3 नोड का क्लास है, उसके अंदर इन्होंने एक वैल्यू स्टोर की है, उसके अंदर एक लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर नोट करा है,
and then they are doing some sort of operations. तो ये एक क्लास है, मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है प्रोग्रामिंग के अंदर में, एंड देन एक आप डिराइव करते हो। तो लिंक लिस्ट या फिर ये सारी चीजें, ये सब क्लास बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर जो आप डिराइव करते हो एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर से, राइट। तो ये वो चीजें हैं यहाँ पे। तो ये हो गई थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्ट बाइनरी ट्री। एक चीज जो हमें समझ में आ गई कि भाई हमें करना है ब्रेक, अपडेट, लिंक, विंक, जो भी है ये सारी चीजें हमें करनी है। सो द क्वेश्चन इज कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। देखो क्वेश्चन बाइनरी ट्री के अंदर में फायदा यही है कि इसका कोड जो होता है ना 4 लाइन का होता है, बस बस 4 लाइन का होता है और कुछ नहीं। सो लेट्स से इफ आई हैव टू राइट, if I have to write function, तो मैं बोलूंगा स्वैप इन्वर्ट ट्री है ना, स्वैप लिंक्स नाम का एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं कि स्वैप लिंक्स ऑफ बाइनरी, अच्छा स्वैप लिंक्स रहने दो। इसके अंदर वी विल पास, सिंपली वी विल पास द रूट, होल रूट एलिमेंट। इस फंक्शन का क्या क्या है, वी विल सी हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। इस फंक्शन का सिंपल काम ये है कि भाई ये आपको सारे नोड्स को ये स्वैप करके दे देगा, मानते हो। जब ये Yeah. स्वैप करके दे देगा आपको, सो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली यू विल हैव टू रिटर्न द रूट। कि भाई अब स्वैपिंग हो गई तो मैं रूट को रिटर्न कर देता हूँ। अच्छा देखो, आई एम नॉट रिसीविंग एनीथिंग थ्रू दिस फंक्शन, मतलब कि ये इन प्लेस करेगा, मतलब ये एग्जिस्टिंग ट्री के अंदर में ही चेंजेस करेगा। दैट इज व्हाई आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट मेकिंग एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ दैट फंक्शन एज वेल। अच्छा ये कोड मैं सी प्लस प्लस में लिख रहा हूँ तो आई विल हैव टू स्विच, अदरवाइज ये पता नहीं ऐसे ऐसे एरर देगा जो मेरे को खुद समझ में नहीं आएंगे। सो क्या था ये स्वैप लिंक्स करके, आई विल पास रूट एंड देन आई विल रिटर्न रूट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव, वेल एंड गुड, बढ़िया है। नाउ माय टास्क इज कि अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर में कि आई विल हैव टू राइट माय स्वैप लिंक्स का फंक्शन, ठीक है, सिंपल सी बात है। आई विल हैव टू इम्प्लीमेंट, सो व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस, एनी आइडिया? Nothing. वॉइड, मतलब जब कुछ नहीं होता है तो वॉइड देता है। आपको जब रिसीव करना है सो आप ये ले लो, सिंपल। लेट्स से विल रिसीव दिस इन अ करंट, मतलब हम रूट भेज रहे हैं बट हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर, रिसीव ऐसे करें कि ये मेरा करंट नोड है, तो इससे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा समझने में, ठीक है। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ, एक केस ये हो सकता है ना कि मैं करंट पे ऐसा फ्लो कर करके जाऊं कि करंट ही मेरा नल हो जाए। अगर मेरा करंट नल हो गया सो आई हैव टू डू द थिंग, आई हैव टू रीड, क्योंकि आप वहां पे लिंक्स किसका स्वैप करोगे, राइट? यू डोंट हैव एनी लिंक्स टू स्वैप, सिंपल सी बात है। ये करंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमें लिंक्स को स्वैप करना है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रांजिशन कर जाते हैं, टू इट्स लेफ्ट टू इट्स राइट। सो वॉट एवर स्वैप कर दो करंट के लेफ्ट को एंड स्वैप कर दो करंट के राइट को, तो ये स्वैपिंग हो गई, मतलब स्वैप लिंक्स लिखना चाहिए मुझे, स्वैप लिंक्स। तो ये हमने रिकर्शन फंक्शन कॉल कर दिया, बट हमने रिकर्शन फंक्शन कॉल किया, ये इस फंक्शन का कोई रेलेवेंस नहीं है। ये फंक्शन क्या कर रही है, ये हर एक रूट एलिमेंट पे चली जाएगी। तो पहले ये 4 पे जाएगी, 4 के बाद ये 2 पे जाएगी, लेफ्ट को जब कॉल करा आपने, जब ये 2 से सारे काम को करके आएगी, 2 से फिर लेफ्ट पे जाएगी तो 1 पे, अब 1 के आगे इसको रूट मिलेगा नल, तो 1 से नीचे जाके इधर आएगी, 1 के राइट इधर भी नल, तो ये वापस 2 पे आएगी और 2 से 3 पे जाएगी। तो भाई आपने ट्रैवर्सल तो कर लिया, आपने ट्रैवर्सल तो कर लिया, you have with line number 18 and line number 19 you have visited every node in the binary tree, but हर नोड पे जाके करोगे क्या, दैट इज द क्वेश्चन। आप करोगे क्या, तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे स्वैपिंग। आई थिंक 3 नोड होता है, सो 3 नोड स्टार्ट, एक हम लोग टेम्प बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग करेंट को, हम लोग यहाँ पे स्वैप की एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ठीक है। सो 3 नोड बनाते हैं टेम्प, जिसके अंदर हम लोग करंट की लोकेशन को स्टोर कर लेते हैं, मतलब करंट का रेफरेंस रख लेते हैं कि करंट इज पॉइंटिंग टू व्हाट, करंट इज 4 है, करंट 2 है, करंट 7 है क्या। और उसके लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर को हम लोग स्वैप करेंगे। कैसे स्वैप करेंगे,
कैसे करेंगे? टेम्प विल बी इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट चलो मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ। यहाँ पे हमने करंट एक टेम्प वेरिएबल बनाया और टेम्प में क्या डाल दो? लेफ्ट का, करंट का लेफ्ट डाल दो, क्या दिक्कत है? then current left equals to current right, ठीक है। and then current right equals to temp. एनी डाउट? No. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लाइन से यू आर विजिटिंग एवरी नोड ऑफ द ट्री, बट हर एक नोड पे जाके करोगे क्या आप? तो हर एक नोड पे जाके भाई मैं ये करूंगा, वन वाली नोड को उठाऊंगा, वन के लेफ्ट में इधर डालूंगा, कुछ नहीं राइट में कुछ नहीं है, फिर मैं टू पे आऊंगा, टू से थ्री पे जाऊंगा, थ्री के नीचे। अच्छा पता है, आप सोच रहे होगे ना कि भाई तुमने पहले कॉल क्यों कर दिया ये, राइट? यू माइट बी आस्किंग। मेरी इंट्यूशन क्या है, मैं फोर पे जाऊंगा, फोर से मैं टू पे जाऊंगा, टू से मैं वन पे जाऊंगा, वन के नीचे कुछ होगा तो वहां जाऊंगा, वापस आऊंगा, वन से इधर राइट जाऊंगा, कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर वन के लेफ्ट राइट को चेंज करूंगा। आप देखो कितना हेल्प करेगा ये। वन से आप पीछे टू पे जाओगे, टू से आप थ्री पे आओगे, थ्री के लेफ्ट पे जाओगे, राइट पे जाओगे, इधर नीचे पूरी स्वैपिंग हो चुकी होगी अगर होती तो। थ्री से जब आप वापस जाओगे तो आपको पता है टू से आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट वाले पॉइंटर में राइट को पॉइंट करना है, राइट वाले पॉइंटर में लेफ्ट को करना We called it because we don't want to swap anything in the root node, and we want to go to the last node and then need to swap. So है। हाँ मतलब once it will भाई हम, call, हम्म it will go to the last node where it will find null. Then only it will start the swapping of the root left and right. बट कर क्यों रहे लास्ट से? Because okay, last में से because there it won't it is not connecting with any links, right? हाँ So we are just following परफेक्ट। top to bottom to up approach. हाँ Otherwise, if I will try to follow from top to bottom, then it will be a lot of confusions will be there लेफ्ट to का start राइट, राइट swapping. का लेफ्ट कर देगा वो, और वो Correct, कंफ्यूज correct, हो जाएगा प्रोग्राम। समझ रहे हो आप? correct. तो Hmm. मतलब इस टू के लिए जब इसके नीचे कोई चिल्ड्रंस नहीं है, ही कैन इजिली स्वैप दिस विद दिस। बट आप पहले टू को इधर डाल दोगे, बट ये टू का लेफ्ट था बट वो राइट हो गया, बट जब वो राइट हो गया तो वो राइट वाला लेफ्ट हो गया। अब जब ये राइट जाएगा तो राइट का राइट और राइट का लेफ्ट भी स्विच हो गया। समझ रहे हो आप कितनी Hmm. प्रॉब्लम होगी जब Hmm. आप ऊपर से स्वैप करते हुए आओगे? इसलिए हम लोग Yeah, नीचे से स्वैप करते हुए जा रहे हैं, पहले बिल्कुल नीचे चले जा रहे हैं और नीचे से स्वैप करते हुए आंसर बेंड करते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। दिस इज द इंट्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? yeah. सो अच्छा ये देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, कहीं हमने कुछ ब्लंडर तो नहीं करा। चल रहा है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज डन। आज जो हमें देखना है वो कुछ व्यूज देखने हैं, कुछ चीजें। बिफोर लेफ्ट राइट व्यूज आई वुड लाइक टू सी बाइनरी ट्री zigzag. Yes, this is the question. So the question is very simple. Given a binary tree, you have to do a zigzag level order traversal. जो क्वेश्चन जो कह रहा है वही करना है, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपके पास ये बाइनरी बाइनरी ट्री देकर के रखी है, जिसके अंदर जो नोड्स है थ्री है, नाइन है, ट्वेंटी है, देन यू हैव फिफ्टीन एंड देन यू हैव सेवन। मुझे बताओ अगर मुझे एक एरे बनाना है ऑफ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, क्या होगा वो एरे, कैसे एलिमेंट्स आएंगे? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल रिमेंबर राइट, ऐसे होता है ना। Yeah. सो यू विल हैव थ्री, देन यू विल हैव नाइन, ट्वेंटी, देन यू विल हैव व्हाट, फिफ्टीन एंड सेवन। So this is on one part, this is in another part, and this is separated, right? So there is this three different array. So this is a 2D array that we store. मतलब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मैंने पढ़ाया था, जब आपने देखा होगा ना कि चीजें कैसे स्टोर करते हैं। अंदर वाले में Correct. एक एक एरे बनाते हैं और उसको एक बड़ी सी 2D एरे में हम लोग स्टार्ट करते चले जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव। बट इस क्वेश्चन में ना थोड़ा ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, इसको लेके चलते हैं हम लोग। वी कैन, अब ये क्या कह रहा था कि भाई जिगजैग में करो। जिगजैग मतलब क्या, कि अगर मेरे पास ये थ्री है और ये नाइन है और ये ट्वेंटी है एंड लेट्स से ये फिफ्टीन है एंड देन आई हैव सेवन हियर,
पहला तो आपका एरो ऐसे होता है, रिमेम्बर। और लेवल ऑर्डर में दूसरा एरो भी आपका ऐसा होता है, अगर आपको पता हो तो। बट इसने क्या बोला, पहला एरो इधर जाएगा, दूसरा एरो इधर आएगा, तीसरा एरो इधर जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा होगा, मतलब आप कैसे फ्लो कर रहे हो उसका डायरेक्शन क्या होगा। सो इफ आई हैव टू स्टोर दिस, इफ आई हैव टू स्टोर दिस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखो पहले लेवल पे तो 3 आएगा, यू रिमेम्बर। बट जो हमने पीछे देखा कि सेकंड लेवल पे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में 9 एंड 20 आ रहे थे, दिस इज गोइंग टू हैपन 20 एंड 9। देखो आपने इधर से फ्लो किया, and then in the third loop we are flowing in this way. So again you will have 15 and 7, and this is what the level order traversal zigzag method, zigzag level order traversal that we have. Is it clear? The question is clear. Hmm. कैसे Yes. करेंगे? Yes. Hello. How are we going to solve this question? Any idea? Hmm. Level order से ही we need to do, we should take a queue or oh, हम्म, ये क्वेश्चन तो अपने आप में क्लियर है कि यू हैव टू यूज लेवल ऑर्डर। व्हाट आई एम आस्किंग, हाउ यू विल मैनेज द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो। मतलब लेवल ऑर्डर में तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है ना, इफ यू रिमेंबर। थ्री के लेफ्ट एंड राइट को पुट करते हो तो 9 विल बी ऑलवेज बी एट द फ्रंट ऑफ द क्यू कंपेयर टू द correct, 20, राइट। सो यू विल नेक्स्ट टाइम जब पुल करोगे तो आप 9 को पुल करोगे, बट यहाँ पे आपको 20 correct, को पुल करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। 20 को पुल correct, करना है, बट 20 के पीछे 15 एंड 17 ऑलरेडी होगा। सो आप पीछे से भी नहीं उठा सकते, तो आप बोल दोगे ना कि भाई डीक्यू से पीछे से उठा लो। बट व्हेन यू आर फ्लोइंग, जैसे 3 पे आप फ्लो करा, आपने 3 पे आपने फ्लो करा, इसके लेफ्ट राइट के चिल्ड्रन को आपने इसमें क्यू में डाल दिया। सो द स्टेटस ऑफ क्यू इज 9 एंड 20, राइट। अब आपको 20 को पिक करना है, जैसे 20 को पिक करना है, तो जैसे 20 को पिक करोगे आप पीछे से, मान लो पिक भी कर लिया आपने, सो यू विल हैव टू इंसर्ट व्हाट, 15 एंड 7, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू पिक दिस 9। उसको टेम्पररी में स्टोर करके can you do like that? सोचो, आप सोचो, मतलब मैं थोड़ा 2 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, लाइक आई वॉन्ट यू टू थिंक हार्ड, नॉट थिंक स्मार्ट। If I will pick 3, if I will 920, right, 920 first. 3 को उठाना है, 15 and 7, then I should take 'if I will take a queue, okay, ओके, so first I will pick it up 3, then I will push it around 920 in the level order, then 15 7, right? राइट। सो when you are at the depth 0, you will pick, you have already inserted 3, right? And for 3 you will insert 9 and 20, but when you are at depth 1, so you will have 9 and 20,
And then Is when it you are possible at like 20, then you will insert 15 and 17. It's not like you will yeah, insert in a single go. I understand. So in the depth, I can switch if that depth is divided by two, then I will insert left and then right. You If it don't is have the option to insert in left and right, right? You don't have options. You cannot okay, insert like अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले राइट वाले को इंसर्ट कर दो फिर लेफ्ट वाले को इंसर्ट कर दो. हाँ हाँ हाँ, that is one thing is possible. मैंने मतलब सोचा नहीं उस बारे में, but that like is something that I know. मतलब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो. Let me just give you a brief idea. अगर ये कि this लेवल is a डिवाइडेड depth बाय zero, this is a depth one, this is a depth two. अगर मैं करेक्ट देखूं अगर मैं देखूं कि whenever my depth is odd, whenever my depth करेक्ट is इट odd, इज I फ्रॉम am राइट inverting it, right? करेक्ट मैं invert कर रहा हूँ. I'm inverting it. करेक्ट So when my level, if somehow if I can maintain a global variable which can tell me whether my depth is one or zero, means it is an करेक्ट odd or an even. ठीक है वो अगर मुझे बता दे. So let's say मैं जीरो पे मैं गया, थ्री पे मैं गया. I'll insert three as usual, मतलब वो पहले insert कर देते हैं good for you. But when you are at one, आप थ्री को बाहर निकालोगे. बट क्योंकि ये वन है तो थ्री के राइट को पहले डालोगे, लेफ्ट को बाद में डालोगे. दिस इज करेक्ट व्हाट करेक्ट यू आर सेइंग. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग या तो नाउ इन द क्यू व्हाट विल हैपन कि आपको 20 पहले मिलेगा और फिर 9 बाद में मिलेगा. ठीक है, मानते हो आप. जब मैं इस पे जाऊंगा, अगर मान लो आप 9 के भी मेरे चिल्ड्रंस होते कुछ 6 एंड 4 कुछ होते. तो जब 9 पे आए थे तो आप क्या डालते, 6 एंड 4. एंड अगर आप 20 पे आते तो आपने डाल दिया होता 15 एंड 7. आपने करेक्ट 20 निकालना था. तो अब 20 निकालना है तो आप इसके लेफ्ट को पहले डालोगे, राइट को पहले डालोगे. क्योंकि ये ऑड है क्योंकि ये ऑड है. नेक्स्ट वाला इवन होगा जिसमें मुझे सिंगल फ्लो चाहिए, तो मैं इसके लेफ्ट को पहले डालूंगा. करेक्ट राइट. सो दिस विल वर्क. व्हाट आई थिंक दिस माइट वर्क. बट इतना मेहनत क्यों करना है, मतलब बहुत इजी नहीं लगता आपको. ओके मतलब हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा. आई ट्राई दिस. हम लोग करेंगे पहले, बट एक और मेथड हम लोग देखते हैं. सिंपल, शॉर्ट, सिंपल, क्लियर मेथड. उसके बाद इसको भी ट्राई करते हैं हम लोग. मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आप लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करो बस ठीक है. ठीक है, कोई झंझट ही नहीं बिल्कुल. ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. मैं करता हूँ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल. और मैं मेंटेन करूंगा कि मेरा डेप्थ कौन सा है. अगर मेरा डेप्थ ऑड आया, उस पर्टिकुलर लेवल पे जो मैंने टेम्परेरी एरे बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, मैं उसको रिवर्स करके इंसर्ट करूंगा. मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, कि आई सिंपली ड्रॉ ट्रैवर्सल्स. तो ये मेरा 3 आएगा, ये मेरा 9 एंड 20 आएगा, और ये मेरा क्या आएगा 15 एंड 7. बट आई नो वन थिंग, दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट, कि भाई मेरा 0 1, जब भी मेरा डेप्थ एक ऑड होता है, मुझे चीजों को किस ऑर्डर में डालनी होती है, रिवर्स ऑर्डर में. तो 9 एंड 20 जब मुझे मिल जाएगा तो व्हाट आई विल डू, आई रिवर्स इट. तो मैं इसको 20 एंड 9 कर दूंगा और दिस विल रिमेन 15 एंड 7. ये चीजें समझ में आती है आपको. ओके मतलब कि भाई हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में चीजें निकाल ली, जैसे कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड वैसे का वैसा एकदम चिपका दिया उसके अंदर में, पेस्ट कर दिया बिल्कुल. ठीक है, बस हमने चेक कर दिया कि कौन किसका कौन सा लेवल है. ठीक है. और अगर मेरा लेवल ऑड है तो मैं उसके अंदर डालने से पहले उसको इन्वर्ट कर दूंगा, मतलब उसको रिवर्स कर दूंगा. मैं बताता हूँ चीजें कैसे होंगी. बट आपने जो बताया, विल सी दैट एज वेल. वो भी बहुत अच्छा अप्रोच है. मतलब मैंने सोचा नहीं था उस बारे में कि हम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं. यस, दिस इज व्हाट वी कैन. तो कैसे स्टार्ट करें इसको. सो वी नीड टू टेक वन क्यू राइट हम्म, एक क्यू लेंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स को डालेंगे. सबसे पहले एलिमेंट्स को करेक्ट मतलब जो हमने लेवल ऑर्डर ट्रांसफर में कर रखा है पहले, वही सारी चीजें करना है हमें. तो अच्छा, करेक्ट रूट नल हो सकता है क्या, लेकिन से देख रहे हो आप.
why you should see the constraints. अगर 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 मेरा नंबर ऑफ नोड जीरो हो गया, जब प्रॉब्लम है ना। Correct. We need to check that तो if it अगर is आपके not पास possible. रूट है ही नहीं, इफ यू डोंट हैव रूट, व्हाट यू विल रिटर्न। देखो सी प्लस Return. प्लस में हम लोग जो रिटर्न करते हैं ना, एम्प्टी वेक्टर या एम्प्टी एरे ऐसे रिटर्न करते हैं। इट इज समथिंग अप टू यू टू थिंक अबाउट कि कैसे होगा उसमें। जावा में क्यू ऑफ थ्री नोड बनाएंगे। अच्छा ये सब तो चीजें हम लोग कर चुके हैं, आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, राइट। एक हम लोग बनाते हैं क्यू का। Hmm. ये दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। क्यू डॉट पुश, क्या पुश करेंगे हम लोग, रूट को। Root. सिंपल जो करते आ रहे हैं भाई, सिंपल। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बूल लेवल में, लेवल को हम लोग बूलियन बना लेते हैं। इनिशियली इसको ट्रू रखते हैं कि लेवल ट्रू है। विल सी हाउ टू फ्लिप, मतलब इसको स्विच कैसे करना है चीजों को, एंड देखते हैं आगे। तो ये सारी प्री रिक्विजिट्स है, दैट इज समथिंग दैट वी नो। अच्छा हमें रिटर्न भी करना है आंसर, इफ यू रिमेंबर हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक आंसर वेरिएबल अपना। अच्छा वेक्टर ऑफ वेक्टर चाहिए ना हमें, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट ऑफ आंसर ऐसे बना देते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट ऑफ आंसर। ठीक है, बढ़िया। आगे क्या करें। अब हमारा ये चीज तो सिंपल है कि while मेरा q डॉट इज नॉट एम्प्टी, q डॉट एम्प्टी अगर मतलब अगर मेरा फॉल्स है, So we need to जब go तक one हमें, by one. हाँ अगर मेरा q का एम्प्टी फॉल्स है, सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैंने निकालता हूँ इसके अंदर में साइज, कि उस लेवल में मेरी q की कितनी साइज है। इफ यू रिमेम्बर q डॉट साइज के हिसाब से, साइज निकल गया। साइज निकलने के बाद क्या करेंगे, एक हम लोग टेम्प वेक्टर टेम्प करंट एरे बनाते थे, अगर आपको याद हो उसमें। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है पहले, आई होप यू Hmm. रिमेम्बर, या फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना पिछला। अच्छा साइज टाइम्स लूप चलाना है हमें उस लेवल के सारे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए। आई इज लेस देन एस जेड आई प्लस प्लस। अच्छा इस लूप के अंदर में चीजें काफी सॉर्टेड है, ठीक है, चीजें काफी सॉर्टेड है, कुछ नहीं करना इसके अंदर में। फ्रंट एलिमेंट को निकालना, उसके लेफ्ट राइट को डालना है, फ्रंट एलिमेंट को एरे के अंदर डालना है, फिर सेंड कर देना। मानते हो, दिस इज व्हाट वी हैव Yeah. टू डू। सो सबसे पहले थ्री नोड, थ्री नोड स्टार टेम्प के अंदर में ले लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग उसका रेफरेंस ना खो दें, राइट। दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब मैंने आपको वो हीप मेमोरी इसलिए बताई थी ना, आप सोचो कि हीप मेमोरी का कोई एक पॉइंटर किसी दूसरी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और आप वो पॉइंटर खो गए, सो मेमोरी के अंदर में आपको उस मेमोरी एड्रेस को ढूंढने का कोई तरीका है नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वी डू दीज थिंग्स। मतलब a lot of people are not clear कि why we do these things, why we maintain the pointer location and all, how memories are located, situated, whatever। तो इसलिए हम लोग करते हैं। लिंक लिस्ट में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जब हमने उसकी उसकी फ्रंट वाली मतलब टेम्प की फ्रंट वाली मेमोरी को प्रिजर्व कर लिया, तो क्यू को पॉप कर दो, राइट, पोल कर दो जावा। So temp tree node temp q dot front q dot pop, बट q का पॉप करने से पहले temp का लेफ्ट राइट क्यू में तो डालना पड़ेगा, दैट इज समथिंग दैट Hmm. वी आर अवेयर ऑफ। तो अगर Temp का मेरा left, temp का left not possible है. temp का लेफ्ट अगर है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इतना लिखा ना, तो इसका मतलब ट्रू हुआ Yeah, yeah, इस it's चीज का मतलब। correct, correct. मैं क्या करूंगा, q डॉट पुश, अरे भाई temp का लेफ्ट, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर मेरा टेम्प का राइट है, टेम्प का राइट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, क्यू डॉट पुश टेम्प का राइट, करेक्ट। Correct. भाई वेल एंड गुड, ठीक है, ये तो हो गया। बट द थिंग इज, हमने मेंटेन नहीं किया, हमने हमें ये मेंटेन करना चाहिए था। सो यहाँ पे हमें एक आंसर भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना भाई, आप अगर समझो तो।
Yeah, I ठीक है। think you need to write that answer in like line number 29. You need to insert na हाँ, that मुझे top इंसर्ट point. करना चाहिए, वो मैं भूल गया, मैं ऊपर ही कर देता हूँ, या हम लोग नीचे करें, सिर्फ उस इंस्टेंस में है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। No, I need to insert the first initially, and then we need to do that. No? नहीं 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 नहीं, आप देखो इस चीज को, हाँ आई थिंक आई शुड डू इट, Oh, बट Q पता dot है, pop. बट पता है आपको, अगर मैं इसके नीचे करूँ तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ, आप ये कह Then रहे हो ना। why where you are going to insert this P dot Q dot pop? You are popping it up, right? You need to push that in the answer, no? हाँ, तो क्यू को जब मैंने पॉप किया, तो क्या मैंने क्यू का फ्रंट का रेफरेंस ले लिया ऊपर? हाँ. क्यू के फ्रंट का रेफरेंस ले लिया, तो उस मेमोरी लोकेशन को मैंने ले लिया, और क्यू से जब मैंने हटाया, तो अब देखो, तो हम तो इस टेम्प से ही सारे आंसर बना रहे हैं ना, टेम्प का वैल, टेम्प का लेफ्ट, टेम्प का राइट, जो किसको डिनोट कर रहा है, क्यू के फ्रंट को, जिसको हमने हटा दिया। अच्छा, हटाने का काम अगर मैं नीचे करूं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको, कि भाई जब सारा काम कर दिया हमने तब हटा दिया, इससे क्लैरिटी मिल रही है आपको, कि Got हमने it. उसके फ्रंट का रेफरेंस लिया, उसकी वैल्यू को पुश कर दिया, उसके लेफ्ट को क्यू में डाल दिया, उसके राइट को क्यू में डाल दिया, और क्यू के फ्रंट को हटा दिया। इज इट क्लियर टू यू? मतलब Yeah. ये ज्यादा मेक सेंस करता है आपको, तो यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था ना, कि अगर मैं टेम्प लेफ्ट राइट को ऊपर पुश करूं या नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसके नीचे भी करूं तब भी फर्क नहीं पड़ता। आप बता सकते हो क्यों? No, because left and right. पुश हो रहा है ना, टेम्प Push. अपडेट नहीं हो रहा है। टेम्प Correct. अपडेट होगा तब प्रॉब्लम होगा। आप टेम्प से लेफ्ट को उठा के डाल दे रहे हो भाई, एक मेमोरी लोकेशन उनकी चली गई क्यों में, क्या फर्क पड़ता है, मेरा टेम्प तो टेम्प पे ही है, Mm-hmm. ठीक है, उससे मेरे को कोई फर्क ही Right. नहीं पड़ता है। अब द थिंग इज, अगर ये आप मानते हो कि ये एक लूप जब आप ट्रैवर्स करके आओगे, जब ये एक लूप ट्रैवर्स करके आओगे, मतलब आप एक रो ट्रैवर्स करके आ रहे हो, एक लेवल ट्रैवर्स करके आ रहे हो, एक डेप्थ ऑफ Mm-hmm. आई ट्रैवर्स करके आ रहे हो, राइट? दिस इज व्हाट वी आर Mm. डूइंग। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, आप व्हाट वी कैन डू, ट्रैवर्स तो कर रहे हो, बट अगर आपको पता, अगर वो ऑड होता या अगर वो इवन होता, ये फर्क था ना, अगर वो ऑड होता या इवन होता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एक नंबर इवन है, उसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा? अच्छा, कोई एक इवन नंबर में अगर आप वन ऐड करो तो क्या वो नंबर क्या बन जाता है? Odd. ठीक है, कोई एक ऑड नंबर में अगर आप उसमें वन ऐड करो तो वो नंबर क्या बन जाता है? Even. Even. पहला लेवल आपका ऑड होना है, इवन होना है? Odd. Like नहीं, even. Even. जीरोथ लेवल इज गोइंग टू ऑलवेज बी इवन ना, वो जीरो होगा, Even. That's what ठीक I है। told. Huh. Even. हाँ, वो हर हमेशा जीरो होगा। सो व्हाट, मैंने यहाँ पे मतलब थोड़ा सोचा, मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ ग्लोबल, मैं ना टॉगल बनाऊंगा, टॉगल। कैसे? कि Got भाई it. I अगर मैं understand. जीरोथ लेवल पे हूँ तो मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है, अब उसमें जाऊंगा, मैं लेवल को फॉल्स कर दूंगा, तो नेक्स्ट केस में मेरे को राइट टू लेफ्ट जाना है, एंड दिस केस इज ऑलवेज ऑलवेज बी देयर। हमेशा एक ऑड के बाद आपको इवन, हमेशा एक इवन के बाद आपको एक ऑड जाना है। मानते हो आप ये बात? Mm. Yeah. तो मैं क्या बोलता हूँ, कि इफ अगर मेरा, अच्छा लेवल को मैंने किससे इनिशियलाइज किया, अगर आप देखो तो ट्रू से इनिशियलाइज किया। अगर मेरा लेवल इक्वल टू ट्रू है, तो मैं लेफ्ट से राइट वाली कहानी बताऊंगा इसको, मैं लेफ्ट से राइट वाली कहानी बताऊंगा, तो बोलूंगा मैंने जो एक ग्लोबल आंसर आंसर नाम का बताया है, उसके अंदर सिंपल पुश बैक कर दो, किसको पुश बैक कर दो? मेरे करंट एलिमेंट को। मानते हो आप? Mm. एल्स, अब जब मैं एल्स की केस में आऊंगा, मतलब ये लेवल मेरा फॉल्स है, जब भी मैं एल्स की केस में घुस रहा हूँ, लेवल फॉल्स है, मतलब कि क्या वो ऑड वाली केस है? ऑड वाली केस है, तो क्या मुझे राइट टू लेफ्ट जाना है? तो राइट टू लेफ्ट में मैं कैसे डाउन जाऊंगा भाई? मुझे रिवर्स करके एलिमेंट्स को डालने, सो आई विल पास दिस फंक्शन कॉल्ड रिवर्स, और उसके अंदर में करंट डॉट बिगिन से करंट डॉट एंड तक की चीजें पास कर दूंगा। आपके पास वो होता है ना एक रिवर्स फंक्शन जावा कलेक्शंस के अंदर में, डॉट Got रिवर्स, it. वो आप Mm-hmm. डाल देना यहाँ पे। तो Mm. अब जो ये मेरा करंट वाला हो गया ना, ये हो गया रिवर्स, जो लेवल हमें चाहिए था ये हो गया रिवर्स। अब जब ये रिवर्स हो गया, अच्छा एक चीज हमने नहीं करा ना, आपने लेवल को यहाँ पे ट्रू करा, तो नेक्स्ट लेवल पे अगर उसको फॉल्स में भेजना है तो लेवल इज इक्वल्स टू फॉल्स भी तो करना पड़ेगा आपको, मतलब चीजों को अपडेट करनी पड़ेगी,
डेवलपमेंट। correct, तो अगर आपने यहाँ पे रिवर्स को मतलब करंट को रिवर्स कर दिया, इसके बाद क्या करोगे आप? आंसर में पुश बैक कर दो। आंसर डॉट पुश बैक व्हाट? करंट, क्योंकि हमने इनप्लेस रिवर्स, रिवर्स current. इनप्लेस होता है ना, वो रिटर्न नहीं करता है। बट जब आपने रिवर्स वाली चीजें कर दी, ऑड वाली चीजें कर दी, नेक्स्ट इटरेशन जो होगा क्या वो इवन का होगा? हाँ, क्या वो इफ में जानी तो चाहिए? उसको लेवल टू हो जाएगा, तो ट्रू हो मुझे जाएगा यहाँ पे लेवल। लेवल को अपडेट करना पड़ेगा ट्रू के लिए। तो भाई मैंने मेंटेन कर दिया एल्स इफ की कहानी के ऊपर लेवल को, चीजें हमने यहाँ पे मेंटेन कर दी। ठीक है भाई। सो ये आपकी एक एक लेवल को करके ला रहा है, और ये यहाँ पे चेक कर ले रहा है कि आपको किस वे में इंसर्ट करना है, लेवल को किस वे में इंसर्ट करना है। जब ये वाइल लूप खत्म होगा, अगर आप चेक करो ये वाइल लूप जब खत्म होगा, तो इसके बाद आप मानते हो कि आपके आंसर में एक करेक्ट करेक्ट फॉर्मेट में सारी चीजें स्टोर होंगी? करेक्ट। आंसर रिटर्न कर दो, आंसर आप रिटर्न कर दो। So if I return the answer, yes, it is what? Is it clear? Any doubt on any line of this code or No, no, any intuition? मतलब पूरा क्लियर है क्या? 100% या 50%? ठीक है, no, it's fine. बढ़िया बढ़िया। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है ये थोड़ा इंट्यूटिव क्वेश्चन हुआ, मतलब आपने भी थोड़ा सोचा इसके बारे में एंड ऑल। Okay, 6 level. इसके अलावा हम लोग दो क्वेश्चन और करने वाले हैं, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको करके आना है होमवर्क, राइट? मतलब यू विल हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। Mm-hmm. वो क्वेश्चंस क्या है? लेट्स से ये तो दिख जाएगा भैया, तो हमने कर दिया अभी। लेट्स से आई थिंक राइट व्यू होता है ना, पहले राइट व्यू करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या। हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। राइट व्यू ऑफ मतलब राइट साइड व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, राइट साइड व्यू। क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन मैं करता हूँ आपको। सो लेट्स से द गिवन बाइनरी ट्री दैट यू हैव, आप चीजों को तीन तरीके से देख सकते हो। अगर आप एक थ्री डी चीज, थ्री डी या टू डी, जो भी चीजों को देखो, आप देखो, आप राइट से देख सकते हो, लेफ्ट से देख सकते हो, या ऊपर से देख सकते हो। मानते हो इसके अलावा कुछ होता है क्या? Yes, charts 4 sides. Yeah. मतलब मशीन ड्राइंग में पढ़े, अगर इंजीनियरिंग के हिसाब से ड्राइंग से देखें, तो वी हैव फोर डिफरेंट व्यू, राइट लेफ्ट टॉप डाउन बॉटम अप, अ लॉट ऑफ व्यूज आर देयर। मतलब अगर मैं बोलूँ, एक इस तरीके के टू डी ऑब्जेक्ट है, अगर ऐसी आपकी टू डी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज द टू डी ऑब्जेक्ट दैट यू हैव फोर, यू हैव थ्री, यू हैव टू, यू हैव वन। आप या तो इसको ऐसे देख सकते हो, या इधर से देख सकते हो, या ऊपर से देख सकते हो, या नीचे से भी देख सकते हो आप। मतलब फोर डायरेक्शन तो होती है भाई, टू डी की भी होंगी फोर डायरेक्शन, राइट? हम जो कंसर्न है ना अभी के लिए, द कंसर्न दैट वी हैव, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू और टॉप व्यू, समझ रहे हो? Yeah. राइट व्यू, लेफ्ट व्यू और टॉप व्यू। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट इज अ क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट वी आर डूइंग, कि वी आर डूइंग अ राइट व्यू। तो हम लोग राइट व्यू कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीजें है क्या। सो यू विल बी गिवन अ रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ इट। एक बाइनरी ट्री है, उसके राइट साइड में खड़े हो, और आपको रिटर्न करना है कि वहां आपके राइट साइड से आपको कौन कौन से व्यू विजिबल होंगे। सो रिटर्न द वैल्यू ऑफ द नोड दैट यू कैन सी ऑर्डर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, इन्होंने ऑर्डर दे दिया, मतलब अगर आप इधर से खड़े हो, ठीक है, लेट्स से यू आर हियर, यू आर हियर, और आप देख रहे हो, तो जरूरी तो नहीं आप हमेशा वन को ही देखोगे। आप पहले टू देख सकते हो, थ्री देख सकते हो, फोर देख सकते हो, फिर वन देख सकते हो। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई ऑर्डर में बताओ, सबसे ऊपर जो है वो दो, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले, ठीक है। सो इन्होंने, अच्छा आप इधर खड़े हो, आपके पास ऐसा ऐसा बड़ा सा आंख है, मतलब ऐसा है आप, तो आप क्या देखोगे? वन देखोगे, ये देखोगे, ये देखोगे। इसके जस्ट बाद वाला फाइव, वो तो इस फोर से कवर हो जाएगा, मानते हो आप? ये थ्री, Hmm. इस टू, टू जो है इस थ्री से कवर हो जाएगा। यू वॉन्ट बी एबल टू सी, तो आपको ये वाली पोर्शन दिखेंगी। मतलब एक स्पेसिफिक सब ट्री आपको देने हैं, एक स्पेसिफिक सब ट्री आपको देने हैं। What do you think how you are going to solve this problem? We can do through level order traversal, and only we will be pushing into the queue whichever it is
right of that particular node. सिर्फ राइट को पुश करेंगे? Yes, सपोज वन है, वन पे राइट को पुश करेंगे, थ्री थ्री से राइट को पुश करेंगे राइट फोर. राइट राइट, मैं एक टेस्ट केस जोड़ता हूँ उसके अंदर, जस्ट गिव मी अ सेकंड या नाउ. सेवन, हाँ हाँ, but I was thinking that only that will be नाउ एनी आइडिया? मतलब आप सोचो, आप 10 मिनट सोचो, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बट ये बहुत इंट्यूटिव प्रॉब्लम है, हमने जो पीछे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जैसे करते हुए आ रहे हैं वैसे ही प्रॉब्लम है, ये बहुत हार्ड प्रॉब्लम नहीं है. बट इट इज अप टू यू, जस्ट टेक फ्यू मिनट्स. okay. Here we can do in the level order transaction in individual each level, right? ओके, In each level we are inserting the first the node and then the left and then the right, correct? so let's say this is the level order traversal. Correct. So we will be inserting at around 1 and then 2 3 then 5 4, correct? Like that is where we do. Correct. Now suppose in the starting we inserted the data 1. Next we will see left and right both we will be inserting, right? राइट. Now in the same level more than one elements are there, then we will be taking the last one. We will discard the other two things. हो गया सॉल्व. अब पकड़ लिया आपने. मतलब अगर आप इसके आंसर्स को देखो और इस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में देखो, आपको हर एक जो करंट एरे हम लोग बनाते थे, इफ यू रिमेंबर सी यू आर आर करके एरे जो बनाते थे, उसकी n-1 इंडेक्स वाली एलिमेंट चाहिए हमेशा हमेशा. दिस इज Correct. ट्रू फॉर एवरी केस. मैंने यहाँ 7 जोड़ा ना, 7. लेट्स से इस लेवल पे 7 होता, इसकी साइज 1 है, इसकी वैलिड n-1 साइज ना ये 0 थी होगी, और वो वहां पे आपको 1 मिलेगा. Correct. राइट. सो दिस इज ट्रू. मतलब मुझे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, चीजों को एक 2D एरे में डालना है, उसके अंदर इंडिविजुअल एरे होंगे, और इस 2D एरे पे इटरेट करके व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक, मतलब इस पे मैं इटरेट करूँ तो फर्स्ट टाइम मेरे को एक एरे मिलेगा, इस एरे का n-1 इंडेक्स, इस टाइम मिलेगा इसका n-1, मतलब साइज -1 मैं कह रहा हूँ, राइट? n-1 मीन साइज -1. सो दिस अगर ये 2 साइज का है, सो 2-1 मतलब 1 वाले इंडेक्स उठा लो, तो ये 0-1 ये 1 वाले इंडेक्स मिल जाएंगे आपको. दिस इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग, राइट? Yes. मैं कह रहा हूँ कि ये एरे बनाने की भी जरूरत है क्या? Why we are wasting extra memory? मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, यू डोंट हैव टू मेक दिस एरे, चीजें सॉल्व हो जाएंगी अपने आप खुद ब खुद. कैसे? क्वेश्चन इज हाउ. सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग, ठीक है? कोड करते हैं, चीजों को देखते हैं, एंड देन हम लोग देखते हैं. अच्छा, इसमें देख लेते हैं क्या वैलिड इनवैलिड चीजें हैं. हाँ, इसके अंदर में भी इनवैलिड है. तो जब भी आप सॉल्व करो ना इस तरह की चीजें, ट्रीज वाली चीजें, एक बार जरा ऐसा थोड़ा कंस्ट्रेंट्स पे देख लेना कि यू हैव टू चेक और नॉट, मतलब ऑल दो आपको चेक कर ही लेना चाहिए नॉर्मली. सो इफ अगर मेरा रूट इक्वल टू नल हो जाए अगर, तो आई डू नथिंग, आई रिटर्न. मतलब ये पीछे वाली चीजें हैं, सोच लो कॉपी कर लूँ पीछे से, बट फिर भी लिख लेते हैं, थोड़ा आपको भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा मेरा भी क्लियर हो जाएगा. क्यू ऑफ फ्री नोड, अरे यार मेरे को लिखने का मन नहीं कर रहा, मैं कॉपी कर लेता हूँ उधर से. मतलब कोड सेम है, ठीक है? कोड सेम है, ये अंदर वाली चीजें हम लोग कॉपी कर लेते हैं, अंदर की चीजें हम लोग देख लेंगे कैसे रिटर्न करना है. लेट्स से सिमिलैरिटीज इज व्हाट वी हैव नाउ. जो चीजें हट जाएंगी ना, ये वाली पूरी चीजें हट जाएगी, क्योंकि अब हमें ट्रैवर्स करना नहीं है. फॉर के अंदर वाली चीजें हम लोग खुद से लिखेंगे, इसकी चीजें को, इन चीजों को मैं हटा देता हूँ.
अच्छा आप बताओ, अभी जो कोड आपको दिख रहा है, अच्छा ये रिटर्न भी हट जाएगी। रिटर्न में इसने वेक्टर ऑफ इंटीजर क्यों मांग रहा है? सो आई विल हैव टू रिमूव दिस वेक्टर ऑफ वेक्टर, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा इनको एक ही लेवल चाहिए ना, आप समझ लो, 2D इसमें आंसर नहीं चाहिए आपको, सिर्फ ये साइड वाले एरे चाहिए, इसलिए उसने वेक्टर ऑफ वेक्टर को हटा के वेक्टर ऑफ वेक्टर। अच्छा एनी डाउट सो फार, जो भी मैंने नो। बॉयलर प्लेट कोड लिखा है, राइट? तो मैं एक थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे मैं रूट को नल के लिए चेक कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने क्यू बनाया, क्यू के अंदर रूट को डाल दिया, और नाउ आई डोंट नीड दिस लेवल, ये लेवल मुझे चाहिए नहीं। एंड देन आई मेक दिस, मतलब मेरे पास ये आंसर वेरिएबल है, सो आई हैव दिस आंसर वेरिएबल जिसके अंदर मैं आंसर को स्टोर करूंगा। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया क्यू का, जो कि एम्प्टी नहीं है। उसके बाद मैंने एक साइज निकाला क्यू डॉट साइज, अंदर मैंने बनाया भाई करेक्ट। पता है आपको अंदर वाली चीजें जरूरत भी नहीं है, मतलब अंदर एक एरे बनाने की एज सच जरूरत है भी नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि अंदर चाहिए, मैं डायरेक्ट बाहर वाले को पुश कर दूंगा। आई सी हाउ टू डू इट, मैं बताता हूँ अभी कैसे हम लोग करेंगे। तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। हाँ फॉर्मेट हो गया। सो ये साइज होगा जितने नोट्स है मेरे हर एक लेवल पे, उतनी मतलब मुझे लूप चला के वो सारे लेवल के लेफ्ट राइट को डालना है। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ वेरिएबल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल मेंटेन करने के बजाय मैं क्या मेंटेन करूंगा? मैं एक मेंटेन करूंगा लास्ट नोड नाम का एक वेरिएबल। मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट नोड नाम का एक वेरिएबल है। आ, अच्छा इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम लोग, नल किया, आई थिंक ऐसे ही होता है ना। हाँ नल पीटीआर, ठीक है, इससे मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। मतलब मैं एक मेंटेन करूँ, आप आपका कंसर्न क्या था? अगर मेरे को सिर्फ 3 चाहिए, तो मैं जब इस लेवल पे ट्रैवर्स करूंगा, तो पहले मेरा लास्ट नोड 2 को पॉइंट कर रहा होगा, जब ये 2 पे आएगा, जब ये 3 पे आएगा तो मेरा लास्ट नोड 3 से अपडेट हो जाएगा। मानते हो आप ये बात? आई डोंट या हैव टू मेंटेन एडिशनल एरे, गॉट इट। हाँ, ठीक है ना, इट एरे इज मेंटेन जस्ट नहीं गोइंग टू करूंगा मैं। रिप्लेस। हाँ वो मतलब हर एक लेवल पे ऐसा रिप्लेस होता चला जाएगा। अब देखो, अंदर घुसने के बाद हमारा कुछ ऐसा पेटेंट किया हुआ चीज है कि भाई हम लोग जो है ना काफी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टफ करते हैं यहाँ पे। ऐसा निकालते हैं, इसको हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और ये टेम्प क्या होता है, मेरा क्यू का फ्रंट होता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर। और क्यू का फ्रंट निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ओके, लेट्स से ये मेरा करंट होगा, टेम्प नहीं बनाते, अदरवाइज टेम्प से आप कंफ्यूज हो जाओगे, मे बी प्रीवियस से। ये मेरा करंट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मेरा करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट कहाँ से निकाल लिया हमने, क्यू के फ्रंट से। क्यू को पॉप कर सकते हैं, बट हमने देखा था कि हम लास्ट में करते हैं, तो लेट्स से लास्ट में करते हैं। अच्छा क्या मेरा लास्ट नोड अपडेट होके मैं किसको कर दूं, किसके बराबर कर दूं लास्ट नोड को? क्या मेरा ये लास्ट नोड अपडेट होके ये करंट को पॉइंट करने लगेगा और नॉट? या गॉट इट। इनिशियली व्हेन इट इज एट 2, तो क्यू से 2 बाहर निकलेगा, मेरा लास्ट नोड 2 को पॉइंट कर रहा है। बट जैसे ही वो 3 को बाहर निकालेगा उस क्यू से, मेरा लास्ट नोड अपडेट हो जाएगा फॉर 3। उसके बाद अगर कुछ नंबर्स होते हैं तो इट विल कीप ऑन अपडेटिंग दोज वैल्यूज अकॉर्डिंगली, उस क्यू से जो भी करेक्ट। वैल्यूज निकलेंगी। तो ये एक थोड़ा मतलब एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग कोड, CURR। अच्छा यहाँ पे अगर हमने करंट बनाया तो भाई हमें करंट का लेफ्ट राइट डालना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? क्यू का पुश क्या करोगे आप? लेफ्ट को, पहले हम लेफ्ट को डालते हैं, देन राइट को। फिर हम चेक कर लेंगे कि राइट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर करता है तो क्यू नॉट पुश कर देंगे किसको, CURR के राइट को, राइट। एंड एंड एनीथिंग एल्स? जब इससे बाहर निकलेंगे तो हमें अपने आंसर को स्टोर करना है। मेरा आंसर कहाँ होगा, क्या समझते हो आप? आंसर में, नो, आंसर में नहीं राइट है, नाउ मेरा अभी कर को करंट के वैल में है। कर को डालना है। हाँ कर मतलब जो भी है, करंट जो मैंने बनाया है करंट के वैल में है। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव गॉट पुश बैक। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो फंस जाते हैं लोग, बट
पुशबैक वहां पे CURR के वैल में, आई थिंक वैल यूज करते हैं ना लोग, डेटा नहीं यूज करते, वैल यूज करते हैं, राइट। परफेक्ट। GFG पे अगर आप सॉल्व करोगे, अगर आपको एरर मिल रहा है, सो देयर दे प्रेफर वैल की जगह पे वो लोग डेटा लिखते हैं, ठीक है, GFG के ऊपर। और आई थिंक दूसरे प्लेटफॉर्म्स दूसरी दूसरी चीजें लिखते हैं, तो आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि हर एक प्लेटफॉर्म का ऊपर ऐसा स्क्रीन करके ये क्लास देख लेना। मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि आप थोड़ा ना हैबिचुअल हो जाओ। कई Yeah. लोग नल पॉइंटर कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है, नल PTR की जगह नल पॉइंटर लिख देते हैं, GFG के अलग लिखते हैं लोग। इसलिए मैं यहाँ से यहाँ पे देखा, ऑल्दो आई नो कि हाँ ये चीजें कैसे होती हैं, बट फिर भी आपके लिए जावा में आप चीजें देखो इसलिए। सो आफ्टर दिस व्हाइल लूप्स एंड, ठीक है, जब ये व्हाइल लूप खत्म होगा, व्हाइल लूप जब खत्म होगा तो क्या है भाई, व्हाइल लूप खत्म होगा तो मेरे आंसर में तो सारी आंसर्स होंगी, मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No. मतलब पता है हमने रिटर्न करना भी है कि नहीं? नहीं, हमें रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब रिटर्न करना जरूरी है, अदरवाइज हमने फंक्शन बनाया होता वो चेक करता, हमें करने की जरूरत नहीं होती। बट यस, वी कैन रिटर्न। CURR, ओके। Okay, it is not getting that last node equals to that भाई in हमने note you लास्ट will नोड भी find स्टोर कर out दिया था ना, तो लास्ट नोड का वैल होगा ना वो। Mhm. नहीं समझे आप? करंट करंट क्या था? करंट लास्ट नोड को हमने किसमें अपडेट कर दिया Correct. था? Correct. Last node you need to keep. Yeah. है ना, लास्ट नोड का वैल करना होगा ना हमें। है टाइम लिमिट एक्सीड, हमने क्या भूल गए? अच्छा आप देख के बताओ हमने क्या भूल गए हमने यहाँ पे। इतनी आइडिया? इतनी आइडिया? मैं एक बात बता देता हूँ, मैं फॉर लूप के अंदर कुछ भूला हूँ। अब आप देख के बताओ, मतलब थोड़ा स्ट्रीमलाइन छोटा कर दिया आपका प्रॉब्लम आइडिया। Okay, I equals to 0, ls I plus plus. Okay. भाई हमने क्यू से ना पॉप नहीं की। Okay, okay. हाँ आप समझो ना, front क्यू से front पॉप नहीं है। front लगा मतलब है, हाँ, front is मतलब not to pop it. Yeah. नहीं, फ्रंट लगाया है। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मेरी जो आदत है ना, मैं जब भी इसके फ्रंट को निकालता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसके जस्ट नीचे करता हूँ। आप मेरे प्रीवियस सॉल्यूशन भी देखे होंगे, जस्ट Now नीचे I में got करता it. हूँ। अच्छा, बट द थिंग इज कि मैंने यहाँ पे भूला और मैं भूल गया। अच्छा, अब मेरे को ये हिट क्यों किया, क्यों किया, ठीक है। दो चीजें हैं जिसकी वजह से क्लियरली मिलेंगी। क्या मैंने व्हाइल लूप यूज किया है? यस, मैंने व्हाइल लूप यूज किया है, ठीक है। व्हाइल लूप की कंडीशन क्या है? मैंने इंक्रीमेंट किया है। Not अच्छा, यहाँ equals पे to empty. इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे लूप को पॉप करना है। तो फिर मैं इस लूप के पॉप के कंडीशन पे मैं गया यहाँ पे चेक करने, क्या मैंने चीजों को पॉप किया है, मैं पकड़ लिया पॉप में। सो दिस इज हाउ यू डीबग कोड, राइट, Got it. दिस इज Yeah, हाउ yeah. यू डीबग कोड। तो मैं इसके नीचे यहाँ पे लगा सकता हूँ कि वट एवर, क्योंकि डायरेक्टली क्यू को पॉप कर देते हैं ना, यू डोंट नीड हाँ. एनीथिंग एल्स, राइट, को पॉप कर। सो दिस इज हाउ यू डीबग कोड एज वेल। टीएलई मिला तो टीएलई क्यों मिला? हाँ, सेगमेंटेशन मिलता। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ सेगमेंटेशन फॉल्ट मिला होता तो मैं किस पोर्शन को देखता? Segmentation fault तो मतलब वो वहीं पे recursion यूज कर रहे हैं क्या? No, we are not using any recursion, no. नहीं, Segmentation. सेगमेंटेशन फॉल्ट गलत बात है कि और रिकर्शन में मिलती है। सेगमेंटेशन फॉल्ट आपको उस टाइम मिलती है जब एक मेमोरी एड्रेस जो आपकी नहीं है और आप उसको ट्राई कर रहे हो एक्सेस करने का। लेट्स से कि आपने छह इंडेक्स तक की एक एरे बनाई, साइज 6 की, और आप उसमें हम्म. उस एरे के लिए 8th इंडेक्स एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हो, विल यू एबल टू एक्सेस इट? तो array out of bound induction है. Okay. नहीं। अच्छा, एरे आउट ऑफ बाउंड, वो उसको ही सेगमेंटेशन फॉल्ट भी बोलते हैं, वो सेगमेंटेशन एरर नहीं हाँ होता हाँ है हाँ, उसमें। got it, got और it. एरे हाँ. आउट ऑफ बाउंड भी देता है मे बी। तो अगर मुझे सेगमेंटेशन या एरे आउट ऑफ बाउंड का केस मिलता, C++ स्पेसिफिक चीजें में भी, मतलब जावा में थोड़ी अलग हो गई चीजें, I don't know, तो मैं यहाँ पे चेक करता, इस पोर्शन को मैं चेक कर रहा होता। अंडरस्टूड? Got it. हम्म.
So this is the question. I hope it is clear to you. I don't think Yeah. you have any doubt. अच्छा भाई ये तो हमने राइट कर दिया, लेफ्ट का आप मेरे को बता सकते हो क्या? लेफ्ट में मेरे को 1 2 3 चाहिए होती, मतलब 1 2 5 चाहिए होता, 1 2 5। अगर लेफ्ट व्यू करना है लाइन नंबर 27 एंड 28 को जस्ट उसको ये कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेट कर देंगे। हाँ। पहले आप राइट डाल दोगे फिर लेफ्ट डालोगे? यस। तो इससे चल जाएगा, ये राइट व्यू मिलेगा मुझे? लेट्स सी। क्योंकि अंदर में पहले मैं राइट डाल दूं लेफ्ट डाल दूं। हम्म, मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा आपको। नाइस आइडिया, राइट। मे बी आप इसको सबमिट करके देख लेना कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो रहा हो, ऐसा नहीं कि मतलब आप इसके भरोसे ही रह जाओ कि हाँ, भाई। मेरे को वही लगा क्योंकि आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दैट वैल्यू ना, तो राइट का ही हाँ, वैल्यू लेके। मतलब की वाली वैल्यूज में डालूं तो चीजें वो, हाँ इसमें मैक्सिमम चीजें ऐसी होती है। अच्छा है ना, मेरे पास एक क्वेश्चन है, आई थिंक लेफ्ट व्यू का क्वेश्चन इस पे है नहीं, अगले कोड पे। लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री, लिखो। 10th लेफ्ट व्यू होते बाइनरी, जीएफजी की तो है इनके पास, बट राइट ना, ये है नहीं। सो आई थिंक लेफ्ट व्यू तो यहाँ पे है। सो इफ यू हैव, देखो यहाँ पे लोग डेटा बोलते हैं इसको, ठीक है, और नल पीटीआर की जगह नल लिखते हैं, जो मैं बोल रहा था आपको। हम्म। अच्छा ये क्वेश्चन कर लेना, आप ट्राई कर देना, राइट। आई डोंट थिंक इट इज हार्ड फॉर यू नाउ, although we have done। ओके, कैन यू प्लीज कीप दिस यूआरएल्स देयर? ओके ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं, अच्छा इसके इसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन ट्राई करके आ रहा है, दैट इज अ टॉप व्यू। उसमें थोड़ा आपको इंट्यूशन लगेगा, थोड़ा आप अपना ऐसा ब्रेन लगाओ एंड ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। अच्छा मैंने थ्री के क्वेश्चन ही ऐड नहीं करे हैं। बाइनरी थ्रीज जो आज मैंने करा है, वो आज वाले में पहले ऐड कर देता हूँ, एंड देन हाँ आई हाँ। आल्सो ऐड द प्रीवियस पॉइंट। ओके व्हाट हैपेंड, हमने इन्वर्ट करा है। वी हैव सीन दिस राइट साइड का व्यू, and then we have seen टॉप व्यू डॉट करोगे, राइट हमने कर दिया, जिगजैग हमने देख लिया। सो दिस इज व्हाट यू विल डू इनटू दिस सेशन। और क्या बचता है हमारे पास? तो वी हैव डन दिस जिगजैग, राइट व्यू हो गया। टॉप व्यू आई थिंक इन्होंने ये तो डिस्कशन में लेट कोड पे टॉप व्यू है नहीं, तो आपको टॉप व्यू जो है वहां से देखना पड़ेगा, जीएफजी से आई गेस, राइट। ओके। इन्वर्ट कर दिया हमने, ये हट गया हम लोग। टॉप व्यू अभी मैं देखता हूँ क्या है हमारे पास। ठीक है। ये हमने सबमिट कर दिया, राइट। इन्वर्ट बाइनरी तो हमने कर लिया, दैट्स डन। एंड लेफ्ट व्यू, ये मैं ऐड कर देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, लेफ्ट व्यू ठीक। एंड टॉप व्यू। लेट मी जस्ट सर्च फॉर द टॉप व्यू एज वेल। एंड वन मोर थिंग, वो लिस्ट का थोड़ा वो बोल देना, लिंक लिस्ट का। फ्रीक्वेंट एलिमेंट वाला ना, टॉप मतलब रोटेट वाला क्या? हाँ हाँ, विथ रिवर्स के रिवर्स, अरे नंबर वो ऑफ आपका रोज, सॉल्व नहीं करेक्ट। हुआ क्या अभी तक?
नहीं, मेरे को सॉल्यूशन मेरे को देखा, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन। लाइक डमी नोड का यूज होता है क्या लीड कोड में, इसमें इंग्लिश में ज्यादा? होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं करेंगे। डमी नोड आई थिंक उसमें नो नो, ये से। केस के हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ दैट हाँ। केस आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हेन टू सो यूज डमी नोड। हैव यू सीन वीडियोस लाइक यूट्यूब वगैरह पे चेक किया क्या आपने? या अच्छा चलो, तो फिर मैं आपको बना के भेज देता हूँ कुछ। मैंने कुछ देखा, मैंने देखा नहीं है। आई वांट अ लिटिल बिट इजियर सॉल्यूशन काइंड ऑफ, अच्छा मैं मतलब देखूंगा कुछ उससे मेरे को इजियर अगर मिलता है कुछ, तो आई थिंक अबाउट इट एंड देन आई विल। रिवर्स लिंक आई लिस्ट इन के थिंक ग्रुप्स। ठीक है, ये सारे तो हो गए। एंड जो हमने पीछे करे थे इज सिमेट्री, आई डोंट नो। आपके पास वो क्वेश्चंस की लिस्ट है क्या, व्हिच वन? जो हमने पीछे करे हैं? This you already kept it in 25 that place, no? आई थिंक दैट इज समथिंग सिमेट्री, राइट? ओके, मैं आई ऐड, मतलब मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा अपना हिस्ट्री वगैरह, या जो क्वेश्चन मैंने Yeah, कराया था तो मेरे को याद ही है ना। यस, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। आई थिंक बाइनरी ट्री तो आपको इजी लगता होगा, अभी तक तो हमने बहुत हार्ड कुछ क्वेश्चंस करे हुए हैं और इसमें इजी सारे होते हैं, मतलब आई डोंट नो, कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं बट पास सम। ओके, दिस इज आल्सो और देयर। एक चीज मैंने पूछा आपको, वो मार्ज इंटरवल्स का, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा ओके, एक प्रॉब्लम। लेट मी राइट आपके जो। ओके, दो क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू कवर, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन? मर्ज इंटरवल। मार्ज इंटरवल्स है, हाँ, और एक है लिंक लिस्ट रिवर्सल विद के ग्रुप्स, कल कर देंगे दोनों। और एक है के वेज मार्ज, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। लिंक्डइन रिवर्सल इन के ग्रुप्स। अच्छा, मर्ज इंटरवल तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डेटाबेस प्रॉब्लम होता है ना ये तो। विल सी, ठीक है, ये वो तो एक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो आपको अब समझो कि अगर आप टॉप आपने टॉप व्यू अगर कर दिया, राइट, टॉप व्यू कर दिया, हम्म, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आपका बाइनरी का जो है बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल आपका हो गया, राइट। यू कैन सिट फॉर एन इंटरव्यू, यू कैन आंसर क्वेश्चंस, यू कैन आंसर कि चिल्ड्रन क्या है, पेरेंट क्या है, नोट्स क्या है, स्विच कैसे करने हैं, ट्रावर्स कैसे करने हैं, इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर है। आई एम होपिंग कि ये सारी या चीजें आपकी क्लियर है, राइट। गोइंग फॉरवर्ड विल सी ट्रावर्सल्स में ऐड कर दूंगा, राइट। तीन चार ट्रावर्सल्स जो हमने करी थी, दैट इज समथिंग करेक्ट। दैट आई विल ऐड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने हाइट ऑफ बाइनरी ट्री एंड ऑल ये सारी चीजें करी थी, आई विल ऐड दैट एज वेल। डायमीटर भी किया था, हाँ, डायमीटर। दैट क्या क्वेश्चन का नाम आप बता सकते हैं क्या मुझे? डायमीटर ऑफ अच्छा अच्छा, द, डायामीटर ना, डाया तो करा ही था हमने। लेट मी आल्सो ऐड दिस थिंग। ओके, इसका लिंक क्यों नहीं आया भाई? Okay, just give me a second. ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। हाइट हो गई आपकी, डायामीटर, लीड कोड। ओके, लीड कोड का एसईओ बड़ा खराब है बिल्कुल। ये हो गया आपका। अच्छा, अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए कवर यहाँ पे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो क्वेश्चन और होंगे। आई I डोंट नो। already have one interview today or tomorrow. I need to कब give. है, कब है आपका इंटरव्यू? आज या कल, लाइक देना है, लाइक दे ऑलरेडी सेंड द लिंक। ओके ओके ओके। तो मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें आप चाहते हो, लाइक? Nothing, I don't know. Like it will be initially